2025 was honestly a year of reflection for me. मैं एक दिन अपना मेकअप ड्रॉअर क्लीन कर रही थी जब मुझे शॉक लगा. I have enough foundations to last me for the next 5 years. उस मोमेंट पे मुझे फील हुआ कि I had slowly turned into a bit of a hoarder. मैं कभी ओवर कंज्यूमर नहीं थी, लेकिन ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स ने हमें ऐसे कन्विंस कर दिया है कि हर नया लॉन्च लाइफ चेंजिंग लगता है. I used to think I was being smart with my money, but in reality, I was buying too much. Just in case, and that just in case pile is now overflowing. 2025 ने मुझे ये सिखाया कि having more doesn't mean being happier. Actually, it's the opposite. It's overwhelming. Her shelf, her drawer stuffed with things I barely use. So I decided that 2026 will be about using what I already own, repairing my relationship with consumption, and breaking that constant need to buy. ये वीडियो उन्हीं thoughts का extension है. मैं शेयर कर रही हूँ 26 चीजें जो मैं 2026 में बिल्कुल नहीं खरीदने वाली हूँ. For my wallet, for the planet, and most importantly, for my peace of mind. Number 1, foundation. Let's start with the obvious one. Foundation. I have enough bottles to last me at least 5 years. And the funniest part, half of them are almost the same. I used to convince myself that each new formula would be revolutionary. This one's more hydrating, that one's more long-lasting. But honestly, after a point, it all looks the same on your skin. मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ जो अलग अलग फिनिशेस टेस्ट करती रहे. मुझे बस 1 या 2 रिलायबल ऑप्शंस चाहिए. मुझे लगता है फाउंडेशन उन चीजों में है जो ब्रांड्स बार बार रीइन्वेंट करते हैं सिर्फ मार्केटिंग के लिए. एवरी टाइम देयर इज अ न्यू ग्लो और मैट वर्जन. दे ऑल सेल द सेम प्रोडक्ट इन न्यू पैकेजिंग एंड आई फेल फॉर इट. बट अब नहीं. अब मेरा गोल सिंपल है. Finish what I have and stop chasing new launches. Foundations expire and इतना ज़्यादा स्टोर करके रखा हुआ मेकअप एक दिन वेस्ट ही बन जाता है. 2026 for me is all about use what you own. No more just trying foundations. I'm good for half a decade. Number 2, nail polish. नेल पॉलिश के केस में भी स्टोरी सिमिलर है. I went through this phase जहाँ मुझे हर नए शेड ट्राई करने का क्रेज था. Pastel pinks, mauves, deep maroons, glittery golds, you name it, I have it. लेकिन जब मैं एक्चुअली देखती हूँ तो मैं सिर्फ 2 शेड्स यूज करती हूँ. A soft baby pink और एक metallic silver. बाकी सब सिर्फ पड़े रहते हैं, drying out in the drawer. Over time, I've realized that I'm not someone who keeps changing nail colors every week. I like neat, clean nails, and that's it. Honestly, nail polish dries out faster than you can finish it. Half the bottles go thick and clumpy long before they are used up. So why keep buying more? So 2026 में I'm committing to no new nail polish purchases. I'll use up what I already own, and even if I ever run out, which is highly unlikely, I'll only buy 1 or 2 neutral shades that I truly love. Number 3, lipsticks. मुझे लगता है हर वुमन का एक लिपस्टिक फेज जरूर होता है. हर नए लॉन्च पे लगता है ये शेड मेरे पास नहीं है. और अब जब मैं अपनी कलेक्शन देखती हूँ मुझे खुद पे हंसी आती है. I have enough lipsticks to last me and maybe even my daughter one day. Red, nude, pink, mauve, coral, every possible variation of the same 5 shades. मुझे लगता था हर shade थोड़ा different है. But honestly, once you apply it, they all look similar. I also realized कि मुझे सिर्फ कुछ ही कलर सूट करते हैं. एक warm nude, एक berry tone और एक soft pink. बाकी सब बस clutter है. And you know what? Lipsticks भी expire हो जाती है. So 2026 is my no lipstick buy year. Instead of hoarding more, I want to actually enjoy the ones I already have. मुझे अब नया शेड नहीं चाहिए. मुझे वो satisfaction चाहिए कि मैंने अपनी पुरानी लिपस्टिक फिनिश की, which is such a difficult task, I know. There's something so grounding about that, using up what you once loved instead of constantly chasing newness. Number 4, perfumes. Perfumes used to be my obsession. एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था हर मूड के लिए अलग फ्रेग्रेंस होनी चाहिए. Fresh for mornings, musky for evenings, floral for summer, woody for winter. Slowly collection 100 bottles cross कर गया. And one day I looked at that shelf and thought, this is not luxury, this is excess. I realized मुझे खुशबू नहीं, novelty पसंद थी. The high of a new scent was addictive. But अब मुझे लगता है कि perfume तब special लगता है जब आप उससे memories जोड़ते हो. When you wear the same fragrance often, it becomes you. So 2026 में no new perfumes for me. I'll finish what I own and actually enjoy each one. Number 5, eyeshadow palettes. Eyeshadow palettes, the biggest trap for makeup lovers. मुझे लगता था जितना ज़्यादा shades उतना ज़्यादा creative freedom. But truth be told, I use maybe 3 or 4 colors from each palette and the rest just sit there untouched. हर नया launch मुझे लगता था this one will be different.
But in the end, it's all the same browns, pinks and golds and new packaging. मैं आई शेडो पर्सन कभी थी ही नहीं, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल नहीं पसंद. I have so many palettes that have blues, greens and other colors in it, and I absolutely don't use them. I end up using the same neutral shades. So why do I need 10 palettes? 2026 will be my no eyeshadow buy year. मैं अपने existing palettes को खत्म करने की कोशिश करूंगी, which again is impossible to do, या फिर declutter करके किसी और को दे दूंगी जिसे वो actually use हो. Makeup should bring joy, not guilt. मुझे लगता है हम सबको थोड़ा mindful बनना चाहिए, because it's not just about saving money, it's about saving mental space too. Number 6, मस्कारा. मस्कारा के केस में मैं ऑलरेडी सॉर्टेड हूँ. मैं एक ही मस्कारा यूज कर रही हूँ पिछले 1 साल से एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन फॉर मी. उसके अलावा मेरे पास 3 और मस्काराज अनयूज्ड पड़े हैं, तो मुझे और क्यों चाहिए. मस्कारा कोई कलेक्टेबल आइटम नहीं है. इट एक्सपायर्स, ड्राइज अप और फिर वेस्ट बन जाता है. सो 2026 में नो न्यू मस्कारा परचेजेस. पहले जो है वो फिनिश करूंगी, 1 प्रोडक्ट फुल्ली यूज्ड. दैट्स द गोल. नंबर 7, टोनर्स. हर ब्रांड की मार्केटिंग में लिखा होता है रिफाइंड पोर्स, टाइटन स्किन, एड्स ग्लो, बट इन रियलिटी मुझे कभी कोई विजिबल डिफरेंस फील ही नहीं हुआ. I have 2 huge bottles of the Tony Moly Mochi toner sitting on my vanity right now, and I know they last me ages. Once they are over, that's it. No more toners. मैं अपनी स्किन केयर रूटीन सिंप्लीफाई कर रही हूँ. मुझे अब कॉम्प्लिकेटेड 10 स्टेप रूटीन्स नहीं चाहिए. Cleanser, moisturizer, sunscreen, that's more than enough. Skin doesn't need layers of products. It needs consistency and care. Toner बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिससे ना टाइम बचता है ना मनी. Makeup wipes or wet wipes. Once upon a time they felt like a lifesaver. Especially जब लेट नाइट्स के बाद मेकअप रिमूव करने का पेशेंस नहीं होता था. But then I learned how terrible they are for the environment. Single-use products that end up in the landfills and oceans taking years to decompose. एक वाइप सिर्फ 1 मिनट का कन्वीनियंस देता है, but planet पे उसका इफेक्ट डेकेड्स तक रहता है. अब मुझे रियलाइज हुआ है कि कन्वीनियंस के चक्कर में हम अपनी अर्थ को खत्म कर रहे हैं. So I switched to soft baby towels and an oil cleanser. It's not just eco-friendly, it's also better for my skin. When I use करती हूँ, I toss them in the washing machine and use them over and over again. 2026 के लिए मेरा clear goal है. No makeup wipes, no wet wipes. मुझे sustainable habits चाहिए. मुझे अपनी skin और planet दोनों से responsibly behave करना है. Simple reusable cloths work perfectly, and the satisfaction of knowing you're reducing waste, priceless. Number 9, bath and body products. Oh God, bath products. मेरे पास इतने सोप्स, बॉडी वॉशर्स और मॉइस्चराइजर्स है कि आई डोंट नीड टू बाय एनीथिंग फॉर एटलीस्ट 1.5 years. एवरी टाइम कोई न्यू फ्रेग्रेंस दिखता था, मैं ले लेती थी बिना ये सोचे कि मैं यूज कब करूंगी. अब बस 2026 is strictly use what you have here. No new bar soaps, no body washers, no lotions. मैं एक एक प्रोडक्ट फिनिश करूंगी और सिर्फ जब जेन्युइनली खत्म हो जाएगा तब ही नेक्स्ट बाय करूंगी. मुझे अब बाथरूम शेल्फ्स क्लीन और ब्रीदेबल चाहिए, नॉट ओवरक्राउडेड. Less products, more clarity. Number 10, primer. प्राइमर मेरे लिए बिल्कुल पॉइंटलेस प्रोडक्ट है. मैंने ट्राई किया मल्टीपल टाइम्स, बट मुझे कभी कोई विजिबल डिफरेंसेस दिखता ही नहीं. मेकअप सेम ही लगता है, स्किन सेम ही फील होती है. सो अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, प्राइमर इज नॉट फॉर मी. 2026 में नो प्राइमर्स. मैं अपनी स्किन केयर प्रेप पे फोकस करूंगी, नॉट एक्स्ट्रा मेकअप लेयर्स. Sometimes the best decision is admitting something just doesn't work for you. Number 11, hair mousse. एक और प्रोडक्ट जिससे मुझे लगता था मेरी हेयर रूटीन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. बट हियर्स द ट्रूथ, मैं इतनी लेजी हूँ कि मुझे ब्लो ड्रायर ही यूज करने का पेशेंस ही नहीं है. मूस तभी काम करता है जब आप स्टाइलिंग में रेगुलर हो. मुझे इनिशियली लगा था दैट इट विल गिव मी दैट सैलून बाउंस लुक, बट इंस्टेड इट जस्ट सैट देयर अनयूज्ड. मैं वॉश के बाद अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने देती हूँ. मुझे अब रियलाइजेशन हो गया है कि एवरी प्रोडक्ट इजंट मेंट फॉर एवरी पर्सन. हेयर मूव्स मेरे लिए अननेसेसरी है, एक एक्स्ट्रा स्टेप जिसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं. नंबर 12, ड्राई शैम्पू. आई एम नॉट गोना लाई, आई लव यूजिंग ड्राई शैम्पूज, बट मुझे रिसेंटली एक हैक मिला है, बेबी पाउडर. थोड़ा सा बेबी पाउडर स्कैल्प पे लगाओ, जेंटली मसाज करो और ऑयलीनेस गायब. सिंपल, चीप और इफेक्टिव. ड्राई शैम्पूज खरीदने की जरूरत ही नहीं. मेरे पास अभी 2-3 बॉटल्स ऑफ ड्राई शैम्पू है जो मैं पहले खत्म करूंगी एंड देन आई स्विच टू बेबी पाउडर. मुझे रियलाइज हुआ है कि मिनिमलिस्ट हेयर केयर ज्यादा सस्टेनेबल है. सो इन 2026 नो ड्राई शैम्पूज फॉर मी. आई एम स्टिकिंग टू ओल्ड स्कूल ट्रिक्स दैट वर्क बेटर, कॉस्ट लेस और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है. नंबर 13, हेयर टूल्स. मैं कभी भी अपने हेयर स्टाइल नहीं करती, ना मुझे डेली स्ट्रेटनिंग करना पसंद है ना कर्लिंग.
मेरा हेयर नेचुरली स्ट्रेट है और मुझे वही पसंद है, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया देख के लगता था मे बी आई नीड दैट न्यू स्टाइलिंग वॉन्ड और ब्लो ड्राई ब्रश। द ट्रुथ इज वो सब बस एक दिन के एक्साइटमेंट तक के लिमिटेड होता है, बाद में कॉर्नर में पड़े रहते हैं। आई हैव इनफ हेयर टूल्स फॉर वन पर्सन, सो इन 2026 नो मोर हेयर टूल्स। 14 रिस्ट वॉचेस। रिस्ट वॉचेस आर अ ग्रेट थिंग। एक अच्छी रिस्ट वॉच आउटफिट को इंस्टेंटली एलिवेट कर देती है, क्लासी, कॉन्फिडेंट और टाइमलेस लगता है। But I have 6 wrist watches in total and honestly that's more than enough. But still हर बार जब मैं कोई नई लग्जरी ब्रांड का एड देखती हूँ या कोई मेटालिक डुअल टोन वॉच ऑनलाइन दिख जाती है तो एक सेकंड के लिए मन कर जाता है बस एक और ले लेती हूँ। And then I remind myself, why? I already have one for every outfit, every occasion. Watches are not something you wear 10 at a time. I think we often buy more because we chase novelty, not need. मुझे अब सिर्फ यूटिलिटी नहीं सस्टेनेबिलिटी चाहिए। सो 2026 में आई हैव डिसाइडेड आई एम नॉट बाइंग एनी न्यू रिस्ट वॉच। जो मेरे पास है उन्हीं को पहनूंगी, चेरिश करूंगी और उन्हें अपना स्टेटमेंट बनाऊंगी। मुझे अब ये समझ आया है कि ट्रू एलिगेंस कम्स फ्रॉम हाउ यू वेयर समथिंग, नॉट हाउ मेनी यू ओन। लेस क्लटर, मोर कॉन्फिडेंस, दैट्स द न्यू रूल। 15 हैंडबैग्स। मैं हैंडबैग पर्सन नहीं हूँ, मुझे हैंडबैग्स के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे फंक्शनल बैग्स पसंद है, फिर भी कभी कभी सेल्स और इन्फ्लुएंसर वीडियोस देखकर लगता था मे बी आई नीड वन मोर, बट रियलिटी चेक, आई डोंट। मेरे पास ऑलरेडी हर सिचुएशन के लिए एक बैग है। फैशन इंडस्ट्री हमें ये बिलीव कराती है कि हर आउटफिट के साथ अलग बैग होना चाहिए, बट मुझे लगता है दैट्स अननेसेसरी प्रेशर। अब मुझे एस्थेटिक से ज्यादा कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट लगता है और ऑनेस्टली हैंडबैग्स टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस टू। 2026 में मैंने डिसाइड कर लिया है नो न्यू हैंडबैग्स। आई यूज द वंस आई ऑलरेडी हैव, टेक केयर ऑफ देम प्रॉपर्ली एंड इफ कोई पीस डैमेज हो गया है आई विल रिपेयर इट इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग इट। 16 शूज। मैं कॉन्फेस करती हूँ आई एम अ शू एडिक्ट, लाइक रियली। मेरी शू कलेक्शन रिडिकुलस है। मैं शूज के अर्ज को रेजिस्ट ही नहीं कर पाती, बट अभी मेरे पास और शूज स्टोर करने का स्पेस ही नहीं है। आई सीरियसली नीड टू स्टॉप। सो 2026 में मैंने डिसाइड किया है नो मोर शूज, नो मोर शूज। ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा बट आई विल ट्राई। 17 न्यू फोन और फोन एक्सेसरीज। मैं एक प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। मेरा फोन काफी पुराना हो गया है बट इट एक्चुअली वर्क्स परफेक्टली फाइन। मुझे रियलाइज हुआ है मुझे नए फोन का क्रेज नहीं है और फोन कवर्स, मुझे एस्थेटिक से ज्यादा फंक्शनैलिटी चाहिए। मेरा एक टफ रिलायबल कवर है जो मेरे फोन को मल्टीपल ड्रॉप्स के बाद भी बचाता है एंड दैट्स ऑल आई नीड। मैं अब नए केसेस या फोन एक्सेसरीज खरीदने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है these are just small ways brands make us spend unnecessarily. 2026 will be about using what already works. 18 टेक गैजेट्स। टेक के केस में मैं काफी प्रैक्टिकल हूँ। मुझे नए गैजेट्स का क्रेज नहीं है। मेरे पास जो है वो परफेक्टली काम करते हैं। एक गुड कैमरा जो बिल्कुल फाइन काम कर रहा है, एक ग्रेट लेंस, एक चीप सा माइक्रोफोन जो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक मैकबुक एयर जिसमें मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। हर साल नया गैजेट लेना मुझे अननेसेसरी लगता है, स्पेशली जब जो चीजें मेरे पास है वो ऑलरेडी अपना काम अच्छे से कर रही है। तो 2026 में मैं कोई भी टेक अपग्रेड तब तक नहीं करूंगी जब तक कोई चीज कंप्लीटली काम करना बंद ना कर दे। Not because it's low, not because it's old, only if it's dead. Tech waste already एक huge environmental problem है और मैं उस साइकिल का पार्ट नहीं बनना चाहती। Use it fully, repair if possible, replace only when needed. That's my rule. 19 subscriptions. मैंने कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, ना नेटफ्लिक्स, ना प्राइम, ना डिज्नी प्लस, एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक आई एवर विल। मेरा एंटरटेनमेंट सोर्स सिर्फ यूट्यूब है और मुझे नॉन प्रीमियम वर्जन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। मुझे एड से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने कंटेंट चॉइसेस पर फुल कंट्रोल पसंद है। मैं जो देखना चाहती हूँ वही देखती हूँ बिना मंथली पेमेंट के प्रेशर के। सो फॉर 2026 नो चेंज हियर। मैं वैसे ही फ्री कंटेंट एंजॉय करूंगी, सीखूंगी और अपना टाइम और पैसा दोनों बचाऊंगी। 20 फास्ट फैशन क्लोथ्स। मैं एक बिग टाइम थ्रिफ्टर हूँ और मुझे इस बात पे जेन्युइनली गर्व है। मैं कभी भी फास्ट फैशन ब्रांड से शॉपिंग नहीं करती। आई हैव नेवर शॉप्ड फ्रॉम दीज अल्ट्रा फास्ट फैशन साइट्स दैट पॉप अप ऑन एवरी इन्फ्लुएंसर्स फीड like Shein, Urbanic, Savannah, H&M, etc. And I mean literally never. मुझे उन ब्रांड्स के environmental damage और उनके poor labor practices बिल्कुल पसंद नहीं। Cheap prices और trendy pieces का charm एक सेकंड के लिए हो सकता है, लेकिन उसका impact planet पर बहुत heavy होता है। मुझे विंटेज और थ्रिफ्टेड कपड़े ज्यादा पसंद है। 2026 में भी मैं वही करूंगी, थ्रिफ्ट, रिपीट एंड रीस्टाइल।
मुझे लगता है स्लो फैशन ही रियल फैशन है, जो टाइमलेस हो, सस्टेनेबल हो और आपको जेन्युइनली खुश रखे। फास्ट फैशन ब्रांड्स के लिए नॉट अ सिंगल टाइम एवर। 21 ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। मैं ऑनेस्टली ज्वेलरी पर्सन नहीं हूँ, मुझे एक्सेसरीज पहनना पसंद है, बट आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद देम। मेरे दोनों दीदी ने मुझे इतने सारे ब्यूटीफुल ज्वेलरी पीसेस गिफ्ट किए हैं ओवर द इयर्स एंड दे आर मोर देन एनफ फॉर मी। मुझे लगता है सेंटिमेंटल ज्वेलरी का वैल्यू ज्यादा होता है, इट हैज मेमोरीज अटैच्ड टू इट। मुझे चीप ट्रेंडी ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं, वो एक दो बार पहने जाते हैं और बाद में टार्निश हो जाते हैं। मैं अपना हार्ड अर्न्ड पैसा उन पर वेस्ट नहीं करना चाहती। 2026 में मैं वही पीसेस प्राउडली रिपीट करूंगी जो ऑलरेडी मेरे पास है, टाइमलेस, सिंपल और मीनिंगफुल। मुझे लगता है रिपीटिंग ज्वेलरी डजंट मेक यू बोरिंग, इट मेक्स यू रियल। 22 फैंसी स्टेशनरी एंड नोटबुक्स। मैं एक बिग टाइम स्टेशनरी लवर हूँ। क्यूट नोटबुक्स, पेस्टल पेन्स, प्लानर्स आर माई वीकनेस। बट सच कहो तो मैं उन्हें यूज ही नहीं करती। हर साल नए खरीद लेती हूँ और पुराने एम्प्टी रह जाते हैं। मुझे लिखना पसंद है, बट एक ही डायरी में कंसिस्टेंटली लिखना ज्यादा पीसफुल लगता है। So 2026 is my use what you have here. No more fancy notebooks या impulse stationery purchases. Simplicity is my new aesthetic. 23 scented candles. मैं ऑनेस्टली सेंटेड कैंडल पर्सन नहीं हूँ। मुझे कोजी वाइब्स पसंद है, बट कैंडल से ज्यादा मुझे डिफ्यूजर और एसेंशियल ऑयल्स का कॉन्सेप्ट सूट करता है। इट फील्स क्लीनर, मोर इंटेंशनल एंड लेस क्लटर्ड। मेरे पास ऑलरेडी 3 सेंटेड कैंडल्स है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उन्हें प्रॉपरली बर्न करके फिनिश करूंगी। नो हाफ यूज्ड कैंडल्स लाइंग अराउंड। उसके बाद आई एम डन। कैंडल्स ऑफ्टन बिकम डेकोर आइटम्स मोर देन फंक्शनल थिंग्स। जलाने का मन भी नहीं होता, पर फिर भी शेल्फ पे स्पेस लेते रहते हैं। मुझे वो विजुअल नॉइस पसंद नहीं। डिफ्यूजर में एसेंशियल ऑयल्स ऐड करो, काम खत्म। सिंपल, रियूजेबल एंड कामिंग। सो 2026 में नो न्यू सेंटेड कैंडल्स एवर। जो है वो खत्म करूंगी। उसके बाद सिर्फ ऑयल्स एंड डिफ्यूजर्स। क्लीन एयर, क्लीन स्पेस, क्लीन माइंड। 24 कैट टॉयज। अगर आप कैट पेरेंट हो तो आप मुझसे रिलेट करोगे। मैंने कैट टॉयज पे काफी पैसा वेस्ट किया है। फैंसी टॉयज, इंटरैक्टिव टॉयज, प्लश टॉयज। रिजल्ट, एक दिन इंटरेस्ट, फिर कंप्लीट बोर्डम। अब वो टॉयज कॉर्नर में पड़े रहते हैं, बस क्लटर क्रिएट करते हैं। रियलिटी ये है, माय कैट्स डोंट केयर। उनका फेवरेट टॉय क्या है पता है? एल्यूमिनियम फॉइल्स से बने बॉल्स और चॉकलेट रैपर्स। फ्री, जीरो क्लटर, एंडलेस एंटरटेनमेंट। So 2026 में नो कैट टॉयज। मैं उनके इंस्टिंक्ट्स फॉलो करूंगी, पेट स्टोर्स के मार्केटिंग क्लेम्स पे नहीं। सिंपल थिंग्स मेक देम हैप्पीएस्ट एंड ऑनेस्टली दैट अप्लाइज टू ह्यूमंस टू। 25 यूजलेस होम डेकोर। मैं अपना होम क्लीन, मिनिमल और क्लटर फ्री रखना चाहती हूँ। मुझे रैंडम डेकोर पीसेस पसंद नहीं, जिनके साथ ना इमोशन होता है ना पर्पस। सिर्फ शेल्फ भरने के लिए चीजें रखना मुझे मीनिंगलेस लगता है। 2026 में नो यूजलेस होम डेकोर। अगर कोई चीज फंक्शन सर्व नहीं करती या जेन्युइनली जॉय नहीं देती तो उसकी मेरे घर में कोई जगह नहीं। एम्प्टी स्पेस भी एक लग्जरी होती है एंड आई एम चूजिंग दैट। 26 स्टोरेज बिन्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। दिस वन इज आयरॉनिक बट ट्रू। मेरे पास ऑलरेडी टू मैनी स्टोरेज बिन्स और ऑर्गेनाइजर्स है। हर डीक्लटरिंग फेज में मैं और ऑर्गेनाइज खरीद लेती थी इंस्टेड ऑफ एक्चुअली रिड्यूसिंग स्टफ। अब मुझे समझ आ गया है, प्रॉब्लम स्टोरेज की नहीं, एक्सेस स्टफ की है। सो 2026 में नो न्यू ऑर्गेनाइजर्स। जो है वही यूज होगा। लेस कंटेनर्स, लेस क्लटर, लेस मेंटल लोड। सो दैट वाज माय लिस्ट ऑफ 26 थिंग्स आई एम नॉट बाइंग इन 2026। ये वीडियो किसी रूल बुक के जैसे नहीं है, इट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस। 2025 मेरे लिए रिफ्लेक्शन का साल था एंड 2026 इज अबाउट एक्शन। मुझे लगा मैं अपने खुद के हैबिट्स के अगेंस्ट जा रही थी, बाइंग, स्टोरिंग एंड फॉरगेटिंग। अब मुझे वापस बैलेंस में आना है। मुझे रियलाइज हुआ है कि हैप्पीनेस शॉपिंग से नहीं आती, पीस और सिंप्लिसिटी से आती है। जब आप अपने पास की चीजों को यूज करते हो, उन्हें वैल्यू देते हो, तब आपको अपने आप पर कंट्रोल फील होता है। एंड ट्रस्ट मी, दैट फीलिंग इज एडिक्टिव इन द बेस्ट वे पॉसिबल। मुझे अब नए चीजों की क्रेविंग नहीं होती। मैं अपना एग्जिस्टिंग कलेक्शन को देखकर जेन्युइनली खुश फील करती हूँ। 2026 मेरे लिए एक रीसेट ईयर है। कंज्यूम लेस, अप्रिशिएट मोर। मैं चाहूंगी आप भी एक लिस्ट बनाओ, मे बी 5 या 6 चीजें जो आप नेक्स्ट ईयर नहीं खरीदने वाले हो। देखना कितना फ्रीइंग लगता है। आज के वीडियो में जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप ग्रोइंग।